स्कॉलर एंड हम क्या करते हैं. सो बेसिकली Bahujan Scholars is a network of graduate students, faculty, and professionals from within India and outside India. The goal of the network is to support scholars from Bahujan communities, build networks, mentoring, group basis also, and one-on-one mentoring as well, promote anti-caste research and activism, and organize online events on academic and professional development topics, such as that we are doing today, and we'll be continuing so. So let me just welcome Shanal Verma. Uh, so I'll give you a very, I have a detailed introduction of Shanal as she's a shining star. Okay, so Shanal Verma is a PhD scholar at, again, Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology, IIT Delhi. Her writings explore caste, gender, cities, public spaces, aesthetics of the marginalized. She is currently working on the everyday feminist performativity of Dalit women in urban spaces through her ethnographic work. So, and her research interests include gender, affect, and anti-caste albinisms. Her paper on Dalit women laughter, Daat Fadu Mahilai, got a special recognition on JCast and mentioned in Bluestone Rising Scholar Competition in 2026. Um, Chanel is also in Institute of Critical Inquiry, Social Inquiry Summer Seminar, New School 2025 Fellow. She is also writing Urban India 3.0 2025 Fellow and the Blue Club Media Fellow 2022. Her works have been featured in various academic and media platforms such as Economic and Political Weekly, Scroll, Critical Philosophy of Caste and Race, Doing Sociology, Feminism in India, Ambedkarian Chronicle, and the Bahujan Lives Matter channel. And she has been actively involved in various ICC and SCST Student Grievance Committee as a student representative in IIT Delhi. So as we move forward to Chanel, so Chanel, you have 45 minutes. Kindly use your presentation and feel free to share your guidance with all of us, and then we'll open the platform for question and answers. Thank you so much, Akansha, for that sweet introduction. First of all, सभी को बहुत ही बधाइयाँ ईद की. Today is Eid, so happy Eid to everyone across wherever you are sitting right now, whichever state, or country. So wishes to all of you. And I would like personally, मुझे ये लगता है कि ये जो सेशन है इसको इंटरेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है. ये कन्वर्सेशन जो आज हम एक हिंदी मीडियम जो हम फोकस ला रहे हैं इस मेंटरशिप का, उसका रीज़न ये भी है कि हमें पता है जो गैप इंग्लिश और हिंदी में है, स्पेशली एकेडमिया में इंडिया में. सो इस गैप को कवर करने के लिए आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट आज ये सेशन रखा गया है. एंड आई मेरा आपसे यही रहेगा, जो आप किधर जो भी स्टूडेंट है, आपका जो भी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. उससे मुझे एक आइडिया भी रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स क्या इंस्पायर कर रहे हैं. सो बिगनिंग ऑफ द टॉक आई वांट टू फोकस, स्टार्ट करते हैं कि हमें क्यों करना है. हमें ये सोचना ज़रूरी है कि आईआईटी हमें जाना क्यों है. हर रोज़ हम न्यूज़पेपर में देखते हैं आईआईटी में एक ये लिव्ड रियलिटी है कि कोई ना कोई स्टूडेंट का सुसाइड होता है. और ये सिर्फ आईआईटी में नहीं, आईएम में भी है, बहुत बहुत सारी जगह हैं. तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे एक सवाल खड़ा हो गया कि इतना सब होने के बाद भी हमें यहाँ क्यों जाना है. ये ये पूछना अपने आप से ज़रूरी है. और हमें ये भी पता है कि उसका दूसरा साइड ये है कि इंडिया में ये जो इंस्टीट्यूट है, डिस्पाइट कि उनमें कैसा भी माहौल, मतलब है, एजुकेशनल इनक्वालिटीज या फिर गैप है, रिजर्वेशन वैकेंसीज नहीं फिल हो रही हैं, उसके बावजूद ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और वहाँ से आपको एक जॉब क्रिएशन, एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट होता है. तो आईआईटी में मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताना स्टार्ट करूँ, तो मैंने जर्नलिज्म ऑनर्स किया था दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से. मेरा इंटरेस्ट हमेशा से जर्नलिज्म में रहा है.
लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए रहे, तो मैंने जर्नलिज्म लिया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे समाज के बारे में और चीज़ें जाननी है, इसकी वजह से मैंने एमए इन सोशियोलॉजी जेएनयू से किया। और उसके बाद कोविड 19 के सेम ईयर में मेरे एंट्री आईआईटी दिल्ली पीएचडी एडमिशन में हुआ। तो ये जो मेरा जो एंट्री था आईआईटी दिल्ली पीएचडी का, और अब तब 2020 से लेकर आज 2026 है, तो इन 6 सालों में मैंने ये जाना है कि सिर्फ डिग्री से ज़्यादा जो आपको एक पीएचडी के अंदर आने के बाद आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं वो बहुत अलग होती हैं। तो मैं आपसे अपने एक्सपीरियंशियल एक एक्सपीरियंस को, जो नॉलेज जो मुझे लगता है कि यंग स्टूडेंट्स को जाननी ज़रूरी है, मैं आपको वो देना चाहूँगी। कुछ हैंड्स दिख रहे हैं मुझे, सो आई आई थिंक आप प्लीज़ वेट करना। हाँ, मैं बाद में आऊँगी आपके एड्रेस, अदरवाइज इफ़ इट्स इम्पोर्टेंट आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो पहला सवाल ये, दिस विल बी द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होगा हमारे आज पीपीटी का। और आपको ये पूछना ज़रूरी है, वाई आईआईटी। और भी जगह हैं जहाँ पे पीएचडी ऑफर हो रही है इंडिया में, जेएनयू है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी है, आईएम्स भी हैं, बट वाई आईआईटी? तो मैं कुछ चीज़ें आपको स्ट्रक्चरली बता सकती हूँ, मटेरियल वाली, कि आईआईटी में जो फेलोशिप है वो दूसरे इंस्टीट्यूट के फेलोशिप से ज़्यादा है पैसे के मामले में। तो दूसरे जेएनयू में जो आपको फेलोशिप मिलती है शायद से वो कम है काफ़ी, और आईआईटी आपको ज़्यादा पैसे भी देता है और वो टाइमली फेलोशिप आपको मिलती रहती है एज कम्पेयर टू जेआरएफ। जेआरएफ स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनकी जो फेलोशिप्स हैं वो स्टॉल हो जाती हैं या फिर बहुत दिन तक नहीं आती। लेकिन आईआईटी में टचवुड ये एक एक्सपीरियंस रहा है जहाँ फाइनेंशियल जो एक स्ट्रगल है स्टूडेंट का वो इतना ज़्यादा नहीं होता। सेकेंडली आईआईटी आपको एक कॉमन जो इंटरनेशनल ट्रैवल है कॉन्फ्रेंस का, एज अ पीएचडी स्टूडेंट अगर आपका एडमिशन होता है वो आपको ऑफर करता है, उसमें आप 2 लाख रुपीज अवेल कर सकते हैं अगर आपका किसी कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन हो गया है। सो ये तो मैं फाइनेंशियल बिट्स की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई आई नो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, हम सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पीएचडी के साथ करते करते। और डिसिप्लिन्स जो आईआईटी के सोशल साइंसेज में ये सारे डिसिप्लिन्स हैं, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, कॉग्निटिव साइंस भी है। वो एक अलग डिपार्टमेंट है, मतलब ह्यूमैनिटीज के अंडर आकर वो अलग डिपार्टमेंट है, और इकोनॉमिक्स भी अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन वो अंडर द ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज है हमारे आईआईटी में। एंड आपके पास फिलॉसफी भी है। नाउ ये तो डिसिप्लिन्स थे, लेकिन अब आते हैं प्रोग्राम्स क्या ऑफर करता है आईआईटी, और आप ये सब वेबसाइट पे जाएंगे तो आप खुद देख पाएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रॉड आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए नेविगेट करना। पहले एमए का कोर्स है, एमए कल्चर सोसाइटी एंड थॉट। ये अभी लास्ट टू लास्ट ईयर से ही द डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है ये कोर्स। फॉर एमए स्टूडेंट्स इट्स अ 2 ईयर कोर्स। इसमें आपको बीए का जो स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए 55%, और 5% रिलैक्सेशन इज देयर फॉर SC ST स्टूडेंट्स एंड EWS एंड ओबीसी एज वेल। एंड गेट स्कोर, इसके लिए आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा ऑफ द सब्जेक्ट। ओवरऑल वो एक MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। एंड अगर आपको चेक करना है कि वो क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, वो क्वेश्चन पेपर भी ज़्यादातर उसके जो कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं सोशोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटी को लेकर, अ, ये थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स बनाया गया है कि आपको इस कोर्स करके आप पीएचडी के दूसरे कोई से भी मतलब आप सोशल साइंसेस का कोई सा भी पीएचडी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपने 8% CGPA आईआईटी में मेंटेन किया तो आप इसको पीएचडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आईआईटी में अगर एक फैकल्टी आपको रेडी है लेने के लिए, तो अभी एडमिशन साइकिल खुलने वाली है। एंड जितने भी स्टूडेंट्स इसको टारगेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज कीप इन माइंड कि आपको गेट की प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद ही मतलब फैकल्टी आपको इंटरव्यू है उसके लिए स्क्रीन भी करेगी।
फिर सेकेंड है एमएससी इन इकोनॉमिक्स, अगेन 2 इयर्स। इसमें एक जैम स्कोर होता है। इसमें दो तरीके से डिवाइड करा गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट इनटेक्स। 15 स्टूडेंट्स जैम स्कोर से लिए जाएंगे, जो जैम एग्जाम जिनका स्कोर अच्छा होगा, और बाकी के जो रिमेनिंग है उनसे एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। जो ब्रेकअप है इन सारे कोर्सेज में, वो कीपिंग इन माइंड, मतलब इन लाइन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज है। सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। एमएससी इन कॉग्निटिव साइंस भी 2 साल का है। ये सब का जो स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट कॉमन है, विद सम वेरिएशंस ऑफ एग्जामिनेशंस। एंड पहले दूसरे एग्जामिनेशंस एक्सेप्ट होते थे, नेट फॉर एग्जांपल। नेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। So ensure, please ensure that with along with the gate, also your net exam, यू हैव योर स्कोर, तुम्हारे स्कोर्स तुम्हारे साथ हैं। और फिर उसके बाद आता है पीएचडी। पीएचडी का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में दूसरी कंट्रियों से ऑफ कोर्स डिफरेंट है। इन यूएसए इट्स 4 to 5 years, यूके में 3 साल या 4 साल होता है, बट हमारे इंडिया में कहते हैं कि 4 या 5 साल में हो जाएगा, बट कभी कभार वो 6 साल भी हो सकता है। एंड व्हेन इट कम्स टू आईआईटीज, इट्स अ द प्रोसेस इज सच कि मतलब वो इनबिल्ट है पीएचडी। वो आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज, मतलब एवरी स्टेज आप इमर्सिव होते हो उस चीज में। जब आप कोर्स वर्क कर रहे होते हो तो आपका पहला कोर्स वर्क होता है 1 साल का। तो आप आईआईटी में आएंगे तो पहला आपका कोर्स वर्क होगा, फिर उसके बाद आप एक एग्जाम पास करेंगे जो कि रिसर्च, आप अपना रिसर्च प्लान प्रेजेंटेशन बताएंगे। बट मैं आई विल कम बैक बाद में, फिर से आई विल कम बैक टू दिस। अभी मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स बता रही हूँ। एंड फिर से मैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आना चाहूंगी कि आपको इसमें इंटरेस्ट क्यों है। आपके दिमाग में कोई रिसर्च आइडिया तो होगा ही, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको इंटरेस्ट करती है। मेरे को पर्सनली दलित फेमिनिस्ट एक्सप्रेशन, इट इट इंटरेस्टेड मी, क्योंकि बचपन से ही मतलब लुकिंग एट कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटीज अराउंड, मैं कि एकेडमिया में वो जो नॉलेज क्रिएशन था, फेमिनिज्म ने जो चीज़ एड्रेस नहीं की थी, वो बहुत कम रहा है। तो उसके रीजन से मैं मेरा इंटरेस्ट दलित फेमिनिज्म में आया। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेली इंसान हूँ जिसका इंटरेस्ट दलित फेमिनिज्म में है। मेरे साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया इस प्रोजेक्ट में। लेकिन हर हर प्रोजेक्ट का या हर आइडिया का वैल्यू होता है कि आप उसको आर्टिकुलेट कैसे कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, या फिर आप क्या गैप देख पा रहे हैं उस रिसर्च का। यू हैव टू, आपको ये भी सोचना है कि आपको आईआईटी दिल्ली का एमए लेना है तो आपको उसके बाद क्या करना है, या फिर आप पीएचडी ले रहे हैं तो उसके बाद आपके क्या इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स हैं। सो कीपिंग इन माइंड ऑल द इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स ज़रूरी है। अगर आप एमए का कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यू कैन बी, आपकी पॉसिबिलिटीज एनजीओ में है, यू कैन वर्क इन कंटेंट क्रिएशन है, सोशल वर्क। इन लॉन्ग टर्म क्रिएशन एकेडमिया है, नॉलेज प्रोडक्शन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचकर अपना एडमिशन लेना है। एंड उसके बाद आपको ये भी इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा, आई थिंक मैं इसको पर्सनली एम्फोसाइज करना चाहती हूँ कि कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो एकेडमिया में नहीं है, मेरे घर में कोई एकेडमिया में नहीं है, तो द थिंग इज कि जब आपके घर में कोई एकेडमिया में नहीं होता और आप जब एकेडमिक लाइफ में आते हैं तो बहुत एक अलग फीलिंग होती है। कि आई रिमेम्बर मेरा जो एमए में फर्स्ट डे था क्लासरूम का, मुझे वो थ्योरेटिकल टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे थे और मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी उनको समझने में। और ये तब था जबकि मेरी एजुकेशन इंग्लिश में थी स्कूल में। इमेजिन, उसके बाद भी मुझे वो जो लैंग्वेज थी उसको समझने में, ग्रैपल करने में थोड़ा टाइम लगा। तो आप ये सोचिए कि ये एक रियलिटी है अकेडमिया की, ग्लोबल रियलिटी है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज जो आपको बार बार आपके सामने एक चैलेंज बन के आएगी। और आपको कभी कभार ये लगेगा भी कि मुझे क्यों ये सब इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है, या फिर क्यों इंग्लिश क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। ये कॉलोनियल एक इम्पोजिशन है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़, ये सब सोचने के बावजूद
इंग्लिश एक मीडियम है जिसके थ्रू आप एकेडमिक लाइफ में बेहतर कर पाएंगे, या फिर आप पीएचडी एडमिशन या एमए एडमिशन के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, आपको कैसे करनी चाहिए, इस पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट अभी मैं थोड़ा ब्रेक डाउन जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले कवर करती हूँ। फिर हम मेन चीज पे आते हैं कि एक रिसर्च प्रपोजल कैसे फॉर्मुलेट किया जाए। तो मेन चीज है, अगर आपके दिमाग में एक टॉपिक है तो आप उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, तो आप उस इंस्टीट्यूट पे जाइए, आप आईआईटी की वेबसाइट पे जाके पहले फैकल्टी टारगेट कीजिए कि आपको कौन सी फैकल्टी की प्रोफाइल्स हैं, जो उनका जो रिसर्च एरियाज है जो आपको लग रहा है कि वो आपके रिसर्च एरिया से मैच कर दी है, या फिर आपका उन उस फैकल्टी का सुपरविजन आपके प्रोजेक्ट के लिए अच्छा हो सकता है। तो आप उनसे थोड़ा इंट्रोडक्टरी एक थोड़ा वो बनाइए, जान पहचान बनाइए, उनको ईमेल कीजिए। क्योंकि बहुत टाइम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये फैकल्टी ये ना दूसरे स्टूडेंट के बारे में कैसे पता है, मेरे बारे में कैसे नहीं पता। तो उस चीज का जो गैप है वो कुछ नहीं होता, वो बस एक मिसकम्युनिकेशन होता है। आप फैकल्टी को ईमेल लिखेंगे तो मोस्ट लाइकली है, अगर वो सेबैटिकल पे नहीं है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं उसका रिस्पॉन्ड जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपके ईमेल के थ्रू आएगा। एंड आपको जो ईमेल में लिखना है वो आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को दलित फेमिनिज्म में इंटरेस्ट है, नहीं, आपको ये भी बताना है कि इस लॉन्ग एंगेजमेंट में आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में या इस नॉलेज प्रोडक्शन में नहीं रहा है, या आपको क्या लगता है कि डिफरेंटली इस प्रॉब्लम को एड्रेस करा जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एक एक आर्ट होता है जो ईमेल लिखने का, तो उस पे आप थोड़ा टाइम जरूर स्पेंड कीजिएगा। और फिर हम आते हैं, ये जो पार्ट है आईआईटी दिल्ली के एडमिशन के लिए, स्पेशली फॉर द पीएचडी एडमिशन, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब आप आईआईटी वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो पूरा फॉर्म आएगा उसमें आपसे एक रिसर्च प्रपोजल मांगा जाएगा। तो रिसर्च प्रपोजल, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि रिसर्च प्रपोजल का उनको स्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल पता है, क्योंकि नेट पे सब कुछ अवेलेबल है आज तक। लेकिन एक जो टेक्निक है राइटिंग की, जो एक स्पेसिफिक एक इंस्टीट्यूट की है, वो मैं आईआईटी को रख के बता रही हूँ। पहला है कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको रिसर्च क्या करनी क्यों करनी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको क्या करना है ना। क्यों, क्यों तो इनबिल्ट है, जो ये सवाल है क्यों, ये बार बार आएगा, आपका रिटर्न होगा रिसर्च में। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका एम है रिसर्च का, वो आपको स्टेट करना है। आपको एटलीस्ट आपके रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो आदिवासी मतलब स्ट्रगल देखना है। ये एक एग्जाम्पल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। या फिर मुझे फेमिनिस्ट हिस्ट्री देखनी है इंडिया में, उसके जो कॉन्टेस्टेशंस है, नेगोशिएशंस है। मैं आपको ऐसे सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसके बाद मैं आपको अपना प्रपोजल भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ ये समझिए कि ये स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है। और आप उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के एक प्रपोजल फॉर्मुलेट करिए। फिर हम आते हैं लिटरेचर रिव्यू में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे ना स्टूडेंट का जो एग्जामिनर होता है उसको ये पता लगता है कि स्टूडेंट को पता है कि अपनी फील्ड के बारे में या नहीं पता, या उसको मेजर डिबेट्स जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जो ग्लोबल लेवल पे एकेडमिक स्कूल्स हैं अलग अलग, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन है, क्या स्टूडेंट को इसके बारे में पता है। और फिर वो सब फॉलो करने के बाद आप अपना आर्ग्यूमेंट भी प्लेस करते हैं लिटरेचर रिव्यू के एंड में, कि आपको क्या लगता है कि किस टाइप का लिटरेचर है जो अभी तक मतलब यहाँ पे और इनहेंस कर सकता है इस डिसिप्लिनरी। एक एक डिसिप्लिन होता है, उसका हर डिसिप्लिन का एक एक बाउंड्री फॉर्मेशंस होती हैं जिसके अंडर हम उसको पढ़ते हैं। सो अगर मैं सोशोलॉजी की बात करूंगी तो लिमिट्स, सोशोलॉजी की लिमिट्स भी रही हैं। फॉर एग्जांपल, तो एक कल्पना कानीबरम ने
लिखा है कि सोशोलॉजी इन इंडिया, सोशोलॉजी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इरेज करा है इनिशियली। सो ये जो क्रिटिक उस ऑथर ने किया है सोशोलॉजी के टूवर्ड्स, तो इस तरह का जो आपका, आपको ये समझना है कि एज अ स्टूडेंट यू आर ऑफ, आपकी इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है वो लिटरेचर रिव्यू और मेथोडोलॉजी के जाने से पहले दिखनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बस लिटरेचर रिव्यू लिख दिया कि इसने ये कहा है उसने ये कहा है, नहीं, आपको इंटरैक्शन शो करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फेमिनिज्म लिखूंगी अपने लिटरेचर रिव्यू में या फेमिनिस्ट लिटरेचर स्टेट करूंगी, तो मुझे फेमिनिस्ट लिटरेचर के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लगता है कि इंटरसेक्शनैलिटी इन इंडिया लेट्स से कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, या फिर मैं ये लिखूंगी दिस इज माय इंटरेक्शन। सो आपकी अपनी जो एक पहचान है प्रपोजल में वो रखना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं हम मेथोडोलॉजी में। सो सोशल साइंसेज में जो मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है, ये ज्यादातर क्या है ना, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि हम बहुत सारे मिक्स्ड मेथड्स लिख देंगे, हम स्टैटिस्टिक्स भी करेंगे, हम नैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने ही प्रपोजल में कि और जब प्रपोजल के, अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया देन आपको इंटरव्यू में ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ेगा। एंड ये वो पार्ट है जो एक रिसर्च को शेप करेगा। मेथोडोलॉजी कि आपका क्या मेथड है, किस तरीके से आप रिसर्च करेंगे। क्या आप इंटरव्यू लेंगे फील्ड में जाकर, क्या क्या आप विजुअल एनालिसिस करेंगे, क्या आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, ये सब चीज़ें जो है मेथोडोलॉजी में है। लेकिन जब सोशोलॉजी की हम बात करते हैं तो सोशोलॉजिकल जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टडीज हुई हैं वो एक एथनोग्राफिक स्टडीज हुई हैं, बिकॉज जो चीज़ नंबर्स मेजर नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई टॉक अबाउट मेरा जो खुद का पेपर है दलित वुमेन्स लाफ्टर। तो लाफ्टर एक ऐसी चीज है जो मैं नंबर से नहीं, आई कुड नॉट मेजर कैसे किसी का लाफ्टर का क्या मतलब है। वो जो एक मीनिंग है, एक एम्बॉडीनेस है, एक एम्बेडेडनेस है, ये सारे जो डिफरेंट वर्ड्स हैं इनका मतलब यही है कि सोशो कल्चरल कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है किसी चीज की। सो आपको ये समझना जरूरी है कि एक प्रॉब्लम को आप समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल आई गिव, आप मैस्कुलिनिटी, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट मैस्कुलिनिटी पे है फील्ड में, तो अब आप कैसे रिसर्च करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैस्कुलिनिटी पे रिसर्च है तो आप रिलेशनैलिटी देखेंगे। रिलेशनैलिटी माने जो मैन एंड वुमेन इंटरेक्शन है, डिफरेंट जेंडर्स इंटरेक्शन है, क्वेयर पीपल हाउ दे आर इंटरेक्टिंग, ये सारी आइडेंटिटीज आपकी रिसर्च में इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और फिर जाकर आप एवरीडे नेगोशिएशन, हर रोज क्या हो रहा है, वो कैसे बातें कर रहे हैं, वो लोग उनके मूवमेंट्स क्या हैं, कौन सा इंसान कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है फील्ड पे। तो ये आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको अपनी मेथोडोलॉजी के लिए सोचनी पड़ेंगी। और जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतनी अच्छी आपका मेथड बनेगा। जितना आप उसको, काफी लोग बहुत यूनिक तरीके से अपने मेथड्स फॉर्मुलेट करते हैं। उनका जो मेथड होता है वो पुराने मेथड से बिल्कुल अलग होता है, और उसके बावजूद वो काफी अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हैं कि उनको ये मेथड क्यों लगा सही है। फिर आते हैं रेफरेंसेस पे कि ये तो आपके प्रपोजल के एंड में जाएंगी, जैसे हर पेपर में होता है रेफरेंसेस, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कौन सी रीडिंग्स हैं जिनकी वजह से आपने ये रिसर्च प्रपोजल लिखा है, कहाँ से डिराइव हुई है वो नॉलेज। और फाइनली कि आपका पैशन क्या है। तो इस पीएचडी के बारे में मैं ये भी बोलूँगी कि पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये बहुत लंबी एक जर्नी है, 5 साल की, 4 साल की, 5 साल की, जितना भी टाइम आपका होगा इसमें आपका जो टॉपिक है वो आपके साथ रहता है हमेशा, आप उसके बारे में सोचते रहते हो। पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर वो पढ़ाई आपकी इंटरेस्ट की हो तो वो और ज़्यादा आपको एक नया तरीके का, आपका ना एक सोशल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी है इस जर्नी का। सो इसलिए इसमें ना थोड़ा टाइम लगाना
जरूरी है ये सोचने में कि आपको क्या इंटरेस्ट करता है या फिर क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ एक टॉपिक लेना कि वो ट्रेंडी है या फिर बहुत लोग ले रहे हैं इसलिए नहीं लेना, या फिर इसलिए भी उसको रिजेक्ट करना सही नहीं है कि ये बहुत लोग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत लोग जो चीज कर रहे हैं वो आपके जैसा करें, आप उसमें कुछ नया ला सकते हैं। तो ये सब जो दूसरों को देख के डिसाइड करना नहीं, पीएचडी आपका पैशन है, पीएचडी एक एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो आप लेंगे और आपको वो अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो वो बस ये एक तरीके का लंबा प्रोजेक्ट है, तो आप उसकी तरह देखिए इसको। ये आप प्लीज स्क्रीनशॉट मत लेना इसका। ये 2020 में मेरा प्रपोजल था जो, और ये पूरा नहीं है, ये और भी लंबा था। लेकिन आपके आइडिया के लिए मैंने आपको दिखाया है, बहुत लोग नहीं दिखाते, बट मैं गेट कीपिंग में नहीं मानती हूँ। तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि आप में से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आईआईटी आए एंड ज्वाइन करें डिपार्टमेंट। सो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने जो पॉइंटर्स दिए हैं वो मतलब टू द पॉइंट है। अपना इंटरेस्ट स्टेट करिए और मतलब कीप इट डायरेक्ट। बट आई विल मूव ऑन नेक्स्ट बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड कि आपको कॉपी पेस्ट करना भी मतलब नहीं करना चाहिए। तो आई वुड अर्ज यू ऑल कि आप खुद भी सोचें कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया या दिखाया है आप उसके अंडर आप आए अपने आइडिया से एंड आप एक रिसर्च प्रपोजल फॉर्मुलेट करें। मे बी हो सकता है बहुजन स्कॉलर्स और आगे और सेशन करें जिसमें आपके लिखा हुआ प्रपोजल को हम रिव्यू भी कर सकते हैं। सो मे बी आई कैन आई एम जस्ट थिंकिंग इन लाइंस पे कि आपको और हेल्प चाहिए तो आई एम श्योर दिस ये बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ से आपको ये हेल्प मिल सकती है। अब नेक्स्ट है कि इंटरव्यू। अगर आपने अगर डिपार्टमेंट को आफ्टर आपका गेट स्कोर एग्जाम क्लियर हो गया है रिटन, उसके बाद आपका प्रपोजल किसी फैकल्टी को पसंद आया है, और आईआईटी सिस्टम में फैकल्टी आपको खुद चूज करती है। आप फैकल्टी के नाम सजेस्ट कर सकते हो बट इन दी एंड वेकेंसी मैटर करती है कि एक फैकल्टी के अंडर सीट खाली है या वो रेडी है लेने को स्टूडेंट को। तो इसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। एंड ये काफी मतलब ये काफी वो वाला स्टेज है जहाँ पे आपका जो रिसर्च आर्टिकुलेशन है और आपका जो जो भी आपने प्रपोजल में लिखा है ना, अब वो टाइम आया है जब आपको वो वर्बली बोलना पड़ेगा। और मैं फिर से एम्फसाइज करूंगी कि ये सारे सवाल ऑफन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखे हैं कि फैकल्टी पूछ सकते हैं कि आपको क्या मोटिवेट किया है रिसर्च ने लेने के लिए। दो ऑथर्स के नाम बताओ जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड हो। आपको क्या गैप फील होता है नॉलेज प्रोडक्शन में कि आपने ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट क्यों यूज करा। फॉर एग्जांपल आप एक सोशोलॉजिस्ट पियर ब्यूडो का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करोगे जो कि है सोशो कल्चरल कैपिटल, तो फैकल्टी पूछ सकती है कि आप बॉर्डियन फ्रेमवर्क आपके काम के लिए क्यों रेलेवेंट है। और आपको नहीं, और वो फैकल्टी आपको चैलेंज भी कर सकती है कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये वाली रीडिंग या ये वाला फ्रेमवर्क ज़्यादा रेलेवेंट है, तो आपको क्यों लगता है। और फैकल्टी स्पेशली सोशल साइंसेज की जो फैकल्टी होती है सोशोलॉजी की, उनका ये भी इंटरेस्ट होता है कि क्या वो जो स्कॉलर है वो इनसाइडर और आउटसाइडर एक डायनामिक होता है रिसर्च में। इनसाइडर है जो फील्ड के कम्युनिटी के अंदर है, अगर मैं अपनी कम्युनिटी पे रिसर्च कर रही हूँ तो मैं इनसाइडर हूँ। अगर मैं उससे आउटसाइडर हूँ और मैं किसी और की कम्युनिटी पे रिसर्च कर रही हूँ तो मैं उस रिसर्च के आउटसाइडर बन जाती हूँ। तो वो एक तरह का डायनामिक प्ले होता है। लेकिन हर सोशोलॉजिकल अच्छी एक जो स्टडी है उसमें रिफ्लेक्सिविटी आ जाती है कि मैं अपने पोजीशन पे, जो मेरी रिसर्च में पोजीशन है, क्या मैं उस पे रिफ्लेक्ट कर पा रही हूँ, क्या मैं बता पा रही हूँ कि ये लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ें मैं नहीं देख सकती क्योंकि मेरी सोशल पोजीशन मेरे को अलाउ नहीं करती, या फिर मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब रिफ्लेक्सिविटी में आता है कि आपकी खुद की क्या
अपब्रिंगिंग रही है, या फिर आपकी क्या नेगोशिएशंस रही हैं इस रिसर्च के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सोशोलॉजिकली सिमिल और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे लिखा है ना। तो उसमें अभी तो मैं उसमें नहीं जा सकती, हमें पे इतना टाइम नहीं है। लेकिन आपको ये सब अपनी जो इंटरव्यू में है, आपको ये चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करना ज़रूरी है। क्योंकि इससे फैकल्टी को पता लगता है कि आपने काफी सोचा है अपने रिसर्च के बारे में, आपने काफी मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि आपको आपने एक चीज जो है ना उसके बारे उसका वॉयलेंस नहीं समझा है। वॉयलेंस का क्या मतलब होता है कि नॉलेज प्रोडक्शन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बहुत सोच समझ के करना है। हम किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट भी होता है। तो नॉलेज क्रिएशन का जो एपिस्टेमिक एक हम वॉयलेंस कहते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं, हम मेरा क्यों इंटरेस्ट है इस पे, मैं उसको कैसे जस्टिफाई कर सकती हूँ। फिर और मेथड, मेथड पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक ज़्यादातर इंटरव्यूज में मेथड का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें क्वेश्चनिंग होती है। तो कि ये माइंड में रखिए कि आपने जो मेथड लिया था उस पे सवाल ज़रूर आएंगे। एंड और फाइनली डिपार्टमेंट ये भी कह सकता है कि वाई, क्यों हम आपको क्यों लें जब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप में क्या स्पेशल है। तो ये जो स्पेशल वाला पार्ट है ये तो आप ही बता सकते हो, लेकिन आई विल मूव फॉरवर्ड। और ये प्रोबेबली लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम इनफॉर्मल इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने मिस किए हैं हम उसको कवर कर सकते हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं तो। लेकिन ये जो इनसाइडर एक नॉलेज है कि एग्जामिनर्स ढूंढ क्या रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें वो देखते हैं एक स्टूडेंट में जिससे आपको पीएचडी मिलती है। और अगर आपको मान लो अगर आपका एडमिशन एमए में नहीं हुआ या पीएचडी नहीं मिली, लेट जस्ट से बिकॉज हर चीज आपकी कैपेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। ये मेरिट की बात हमेशा नहीं होती, बात कभी कभार लक की भी होती है और नंबर ऑफ सीट्स की भी होती है। कि हमारा जो देश है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत हाई है, हर कैटेगरी में कंपटीशन बहुत हाई है। तो उसको ध्यान में रख के आप अपने आप को इससे एक सेटबैक की तरह नहीं लेना प्लीज़। बिकॉज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरा आईआईटी बॉम्बे में प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट हुआ था। एंड आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा उस इंटरव्यू में कि मैं कुछ बोल रही थी और वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। मतलब मैं अपना पूरा दलित फेमिनिस्ट प्रोजेक्ट उनको समझा रही थी, एंड पूरा पैनल में सिर्फ मेल मेंबर्स बैठे थे और उनको मेरा प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा था। और मुझे मैं एंड में फिर मैंने बोलना मतलब छोड़ दिया, एंड आई जस्ट स्विच्ड ऑफ माई लैपटॉप। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, मुझे थोड़ा सैड फील हुआ, लेकिन मैंने उस सेटबैक को अपने आप को और निखारने के लिए यूज करा। मैंने उससे मैं निराश नहीं हुई पूरी तरह, और मैंने आईआईटी दिल्ली के लिए और अच्छे से तैयारी की। आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे फीडबैक लीजिए, जो आपके अच्छे दोस्त हैं अपने उनके साथ प्रैक्टिस करिए इंटरव्यू के लिए। अपनी जो स्पीकिंग एक स्किल्स होती हैं उन पे बिल्ड करिए। तो जब हम एकेडमी में आते हैं बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि हमें नर्वस फील होता है बोलने से पहले इंग्लिश के कभी कभार हम एक रूम में होते हैं ना, हम सेल्फ डाउट करते हैं कि क्या हमें ये बोलना भी चाहिए, हमें लोग कैसे जज करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है कि आपकी एस्पिरेशन क्या है। एंड एस्पिरेशन एक ऐसी चीज है आई थिंक जो डॉक्टर अंबेडकर ने भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि एक इंसान की एस्पिरेशन उसको कहाँ तक लेके जा सकती है। और इंग्लिश उन्होंने बोला है शेरनी का एक वो है, वो ना उससे दहाड़ता है इंसान जब इंग्लिश बोलता है। दिस इज डॉक्टर अंबेडकर्स वर्ड्स, हिज बिलीफ इन इंग्लिश। और इस इंग्लिश की वजह से वो ट्रांसग्रेशन कर पाए डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम्स में।
इंडिया से बाहर, बाहर से वापस यहाँ पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सो आप देखिए कि कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप एक मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सो एक कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना, चाहे वो बात हिंदी में कही जाए इंग्लिश में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको कॉन्फिडेंटली बोलिए, आप उसको आर्टिकुलेट करिए। अपने सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज रखिए, है ना। ऑलरेडी एक एंगेजमेंट दिखाइए फील्ड में। तो मेरे आईआईटी दिल्ली एडमिशन साइकिल से पहले मैंने एक आर्टिकल फेमिनिज्म इन इंडिया पे लिखा था, और वो मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट लिखा था। मुझे नहीं पता था कि एब्रप्टली आईआईटी दिल्ली का एडमिशन साइकिल खुल जाएगा, क्योंकि उस साल कोविड था। और ये जो साइकिल खुली थी, ये यूजुअली इस उस टर्म में नहीं खुलती थी, बट उस टाइम पे खुली थी। एंड मैंने अप्लाई करा, तो मे बी नाउ दैट आई लुक बैक, मुझे यही लगता है कि मे बी कमिटी को लगा होगा कि मेरी एंगेजमेंट पहले से ही थी इस सब्जेक्ट में, बिकॉज मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा था। और आर्टिकल फॉर द सेक ऑफ राइटिंग नहीं, कि बस लिख दिया, जबरदस्ती नहीं करना। लिखना भी है तो कुछ ऐसा लिखना है कि हाँ, स्ट्रांगली आर्टिकुलेट करो एक पॉइंट को, एक ऑब्जर्वेशन को, एक आइडिया को, एक ओपिनियन को। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स लगता है कि समथिंग कि आप एनालाइज कर सकते हो, कुछ एक नॉलेज कंट्रीब्यूशन कीजिए, या फिर सोशल वर्क कंट्रीब्यूशन कीजिए उसी फील्ड में जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, लोग इनकी वैल्यू बहुत कम रखते हैं। उनको लगता है ये सब आप जब बस अप्लाई करेंगे और आपको इट्स अ रिजेक्ट और एडमिशन। नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में एक बहुत एक फेज है जहाँ पे आप नेगोशिएट ट्रांजिशन कर जाते हो। कभी कभार एडमिशन के बिना भी आप काफी निखर जाते हो उस प्रोसेस में, एडमिशन के ही। तो इसको टेक इट एज दैट पॉजिटिव चैलेंज, कि मैं नए कॉन्सेप्ट, नए इंसाइट को मैं अपने रिसर्च में या फिर अपने आइडियाज में कैसे कोलैबोरेट कर सकता हूँ, कैसे यूज कर सकती हूँ। या फिर एक जो एग्जामिनर होता है ये भी देखता है कि एक स्टूडेंट का जो नुआंस सोशल अंडरस्टैंडिंग है ना सोसाइटी की, वो लिमिटेड सिर्फ हम तक नहीं होनी चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ दलित फेमिनिज्म पे है तो मैं सिर्फ दलित फेमिनिज्म के बारे में ही बोलती रहूंगी। और दूसरी आइडेंटिटी स्ट्रगल्स, एक स्ट्रक्चर में जो और भी लोग हैं, उनके बारे में मेरा आइडिया जीरो होगा। सो आपके एग्जामिनर actually respects students, who can be a great value even as human beings. ह्यूमन बीइंग भी अच्छा होना चाहिए इंसान, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है, उसमें नहीं जाते मोरालिटी के क्वेश्चन में। अभी तक सिर्फ स्किल्स की बात है। तो स्किल्स की बात है तो आपने एक, आई एम श्योर काफी बच्चों ने एस्पिरेंट देखा होगा जो नया आया है, उसमें भी यही स्टोरी दिखाई है ना। एक इंग्लिश स्पीकिंग यूपीएससी एस्पिरेंट है, एक हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट है, लेकिन हिंदी स्पीकिंग वाला भी डीएम बनता है। तो रिमेंबर दैट कि एक लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकता। अगर आपका डेडिकेशन है सीखने का और करने का, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। सो मैं तो बस या सो आई थिंक यहाँ पे आई लैंड। और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आई होप मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, आकांक्षा। Nice channel, you are on right on time. Before opening the ground for question and answers, मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। और तुमको सुन के मुझे बहुत अपना एडमिशन साइकिल याद आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे और मेरे एक्सपीरियंसेस एकदम सेम है। सो जब तुमने बोला आईआईटी बॉम्बे बॉम्बे और कि सारे आदमी बैठे हैं, मेन इज ऑन द टेबल, नोबडी इज लिसनिंग टू यू। आई थिंक आई फेल द सेम। और कभी-कभी ये भी होता है कि आपका आइडिया जो है वो सामने वाले को नहीं समझ आ रहा है, या उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आइडिया अच्छा नहीं है। सो अपने आइडिया को कभी डिमीन मत करो कि अच्छा नहीं है और बेटर ढूंढ सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ स्कोप फॉर बेटरमेंट, बट आपका आइडिया भी अच्छा हो सकता है, बट बस सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है। आपको बहुत जरूरी है कि आपको राइट सुपरवाइजर, आपका जो मेंटर होगा, आपको राइट सुपरवाइजर ढूंढने की जरूरत है आपके टॉपिक के लिए।
और शैनल ने अपना फेमिनिज्म इन इंडिया में बताया आर्टिकल। सेम एक्सपीरियंस मेरा भी है कि जब मैंने आईआईटी, मैं भी आईआईटी बॉम्बे दिया है, मैंने अपना टेस्ट भी दिया, मैंने क्वालिफाई भी किया, बट इंटरव्यू नहीं हुआ। सेम हैपेंड इन आईआईटी गुवाहाटी की, अगेन पेपर दिया, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन उस दौरान मैं आर्टिकल्स लिख रही थी, और बहुत बड़ा मेरा, मैं कहूंगी कि आईआईटी दिल्ली में एडमिशन होने का कारण ये भी है कि मैं बहुत मेरा 2023 में मेरा मास्टर्स खत्म हुआ था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में। लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने पीएचडी अपना शुरू नहीं किया। लेकिन अब कुछ लोग बोलते हैं कि गैप अच्छा नहीं होता, या यूनिवर्सिटी गैप्स को अच्छा नहीं मानती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस टाइम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत आईसीएसएसआर प्रोजेक्ट्स निकलते हैं सोशल साइंसेज में, आईसीएमआर में प्रोजेक्ट्स निकलते हैं। आप मैं तो आपको मोटिवेट करना चाहूंगी कि डोंट जस्ट स्पॉइल योर टाइम। इधर उधर ना करके आप प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए। प्रोजेक्ट्स पे जब काम करते हैं तो आप एक रिसर्चर बनते हैं, और आपको समझ आता है कि रिसर्चर्स के जॉब क्या होता है। लिटरेचर, जैसा चैनल ने बताया, पूरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रेफरेंसेस लिखने का स्टाइल, ये सब एक आर्ट है जो आपको प्रोजेक्ट से बेहतर समझ आता है। और फील्ड का, जब हमने प्रपोजल में लिख दिया कि ये ऐसा एथनोग्राफिक स्टाइल हम करेंगे, मेथोडोलॉजी हमारा ये है, इनको इंटरव्यू करेंगे, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको प्रोजेक्ट्स आपको एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उत्तराखंड में फील्ड वर्क किया अकेले, फिर मैंने दिल्ली में किया, फिर मैंने पंजाब में किया, फिर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करके किया, मैंने कामाख्या गुवाहाटी में जाके काम किया। तो उससे, और मेरा जो आर्टिकल आया था राउंड टेबल इंडिया में कि हु आर द फोटोकॉपी स्टूडेंट्स ऐसे करके, वो सब मेरा रिलेटेड था स्कूल से, जो मेरा प्रपोजल है। तो उन सब ने मुझे हेल्प किया कि कैसे मैं इंटरव्यू को मेरा स्ट्रॉन्ग कर पाई। तो मेरे पास ज्यादा नॉलेज थी मेरे फील्ड के बारे में, ज्यादा नॉलेज गैप क्या है, और ज्यादा नॉलेज थी कि मेथोडोलॉजी मैं कैसे अप्लाई करने वाली हूँ मेरी फील्ड में। तो मैं भी आपको बताना चाहूंगी, मतलब ऐसा मैं मोटिवेट करूंगी कि आप लोग भी ऐसा प्रोजेक्ट्स ढूंढो। अगर तुरंत पीएचडी नहीं करना चाहते तो व्हाई डोंट यू वर्क इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, वी कैन हेल्प यू, दिस मीडियम कैन हेल्प यू टू फाइंड अ गुड प्रोजेक्ट फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, टू गेट एडमिशन, अगर आपको एडमिशन सिक्योर करना है आईआईटी दिल्ली ह्यूमैनिटीज में, सो गेट ही नहीं सिर्फ एक क्वालिफिकेशन मांगता है। आपके पास जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली भी एक मीडियम है, सिर्फ गेट के लिए सीमित नहीं है। गेट क्योंकि सबको सेम ही स्टाइपेंड मिलता है, सेम ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है जो इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। सो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि गेट ही आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी भी है, पीएचडी ओनली, अभी जो नेट है तीन चीजों में कैटेगराइज है, पीएचडी ओनली, नेट एंड नेट जेआरएफ। तो आपके पास तीनों में से जो भी है, आप बहुत बिल्कुल एलिजिबल हैं आईआईटी दिल्ली में फॉर्म डालने के लिए। ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट। एंड अभी शायद आप सब अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं चैनल से, मुझसे, किसी से भी। यस गरिमा। Hey, hi everyone. प्लीज अनम्यूट करिए। Can you hear me? Hello. यस गरिमा, यस। Yes. Yeah. Okay, hi. So I have completed my master's in 2017, and because of my mom's blood cancer, I have to have all the responsibilities at home. So I have this gap of like 8 years now. So just now I have secured PhD only in UGC NET, and I'm aspiring to put my form into IIT Delhi. So I just wanted to ask, does that going to affect my interview marks? First of all, I'm really sorry to hear that. I understand बहुत ही difficult phase होता है life में challenges आते हैं and especially when your loved one is going through something, it's not easy. I totally like imagine कि आपने कैसे किया होगा। और PhD UGC आपने नेट क्लियर कर लिया, आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग फीट इन इटसेल्फ। तो आई डोंट थिंक कि आपको ये सोचना चाहिए कि ये लिमिटेशन होगा या नहीं। यस, गैप ईयर्स प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करते हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसी ऐसा एक मतलब
how do I say it? You were going through a life crisis, with your mother being, facing this medical problem. Hmm. So I would just say कि don't think on those lines, because examiner हो सकता है कोई मतलब एग्जामिनर समझे इस बात को। ये बात भी Okay. है, जरूरी नहीं है कि Okay. इट विल बी अ drawback for you. Mm-hmm. I'm sure, like at least in my department, there are professors who hold that empathy. Okay. Uh, yeah. So even when I got in the matlab PhD program, I was going through so much because I lost my brother during Mm-hmm. COVID-19, and it was my world broke down, honestly. Yeah, First year I of understand. coursework I did, like it was a challenge for me. But what I'm telling you is that had I really been stuck in thinking that will people be okay, Yeah. accepting, because that time, even though I did good in coursework, I secured a 8.4, but I could have Mm-hmm. secured 8.4 also. So but this is exactly the mindset that I was being kind to myself. I was like, okay, I'll be kind to myself. This is Yeah. not everything also. So it's okay. I mean, just apply, and best of luck to you. But I don't think like, maybe you can also show other things if you have, Okay. you time. I have two more questions. First is I have already prepared my proposal and I'm just on to my interview preparation right now and entrance exam. Okay. I was planning to email few of the professors, but I was like skeptical about the timeline. When should I do that? What is the It right time? Actually, when you go to a faculty's, page, sometimes they have Okay. mentioned if they're on sabbatical. Sometimes, at least in foreign universities, they always, when you email them and they are on sabbatical, you receive that automated email. They are on Yeah, sabbatical. correct. But so don't have to worry. You can just target it during daytime, and that's it. If they are on sabbatical, you'll know. But I would suggest just email them. It's good to email professors, and Okay. Okay. sometimes they may not reply. Let me Okay. also say this, they are very busy. Many of the professors, sometimes they don't reply. Don't take it as a setback, because they do have it in their mind. But yeah, you need to just constantly email them to make that Mm-hmm. mark. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Shannon. Thank you so much. Welcome. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सॉरी फॉर इंटरप्टिंग प्लीज आई मीन हिंदी में बोलिए क्योंकि Oh, ये sorry. वेबिनार हिंदी में ही है तो Sorry. पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल पीपल सॉरी फॉर इंटरप्टिंग प्लीज No, no, sure. Sorry. So sorry. Yeah. हेलो। Yeah. हेलो। Hello. मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है और मैं आगरा से हूँ। एक्चुअली मैंने जो ये अभी ज्वाइन किया, मुझे एक सुनीता कमल मैम है दिल्ली से, उन्होंने मुझे लिंक भेजा। तो ये बोला था कि जो इंटरमीडिएट के आपके यहाँ पास आउट हो तो आपने ज्वाइन कराई, तो मैंने दो बच्चों को ज्वाइन कराया। एक मेरे साथ भी है। हेलो। Hello. Hello. तो अभी एक्चुअली मुझे जो लगा कि मतलब आईआईटी में किस तरह से जा सकते हैं, तो ये खुशी है। तो इसको थोड़ा सा गाइड कैसे किया जाए, या हम हायर एजुकेशन में कैसे जाया जाए। हम अ, हिंदी मीडियम और आगरा में रहते हैं, यूपी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता है। और मैं अगर अपना बताऊं तो मैं तो आईटी फील्ड में हूँ। तो बट अभी जिस तरह का इंडस्ट्री में इशू चल रहा है, जैसे कि एआई आने के बाद बहुत सारे जॉब जा रहे हैं, तो हमने सोच रखा था कि हम आईटी में इनका कुछ भी हम करवाएंगे। और मैं खैर जॉब नहीं करता, मैं मेरा खुद की कंपनी, आईटी कंपनी, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं क्लाइंट्स के लिए। तो इन हाउस है सब कुछ हमारे पास। मेरा तो ठीक चल रहा है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे फर्दर ये जो बच्चे हैं फैमिली के, ये अब आईटी में जाएंगे, उस तरह का मार्केट तो नहीं रहा है। तो अब दूसरे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जिनके लिए हम इनको एजुकेशन कराएं, तो उसमें अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाए तो बेहतर होगा। Sure. Okay. Hi, Rohit. Yeah. Thank you. आप मेरी उनसे खुशी से बात करा हाँ, मैं दीजिए. मैं कराता हूँ, ये लीजिए। हाय यस मैम। खुशी. हेलो। हाय. आप कौन, अभी आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं?
Actually, I'm stuck in my board exams. I'm in 12th from PCM. ओके, पीसीएम, तो आपका इंटरेस्ट है पीसीएम में फुल्ली? Truly, nahi. Actually, I am so engaging about computers and two in English. अच्छा, तो आपको लाइफ में बनना क्या है, मतलब आपका ड्रीम ड्रीम क्या है? एक्चुअली स्टार्टिंग से मेन गोल यही था, क्योंकि फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो ज्यादातर सबको इंजीनियर ही है मेरी फैमिली में। तो मैंने 9th और 10th में यही सोचा था कि लाइक आईटी में, बट आईटी में जाने के बाद अभी जो है मार्केट का स्कोप जो है एआई की वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और काफी सारे डेवलपर्स और इंजीनियर्स की जॉब पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि अभी इतना मेरे पास 1 मंथ का टाइम है, तो आई जस्ट वांट सम सजेशंस। मैं यही कहूंगी कि आप जो भी चूज करो वो आपका इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि आपकी फैमिली क्या कह रही है, क्योंकि आपको वो पूरा लाइफ करना है। अभी आप सिर्फ 12th में हैं, तो अभी आपके पास अभी जो आप सोचोगे आप उसी के हिसाब से उसी कॉलेज में एडमिशन लोगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप एमबीबीएस टारगेट करेंगे, है ना? अगर आपको आईआईटी में आना है तो आपको, लेकिन उससे पहले आपको अंडरग्रेड भी करना है, तो आपको किस सब्जेक्ट में करना है ये सब सोचना जरूरी है। आईटी मार्केट, हाँ जी, अभी डाउन, मतलब एआई के आने से बहुत चीजें चेंज हैं, लेकिन आईआईटी जैसी जगह पे अगर आप करते हैं इंजीनियरिंग या कोई पढ़ाई, तो उसका स्कोप अलग है कंट्री में, उसका एक अलग स्कोप भी है। हाँ, मार्केट डाउन जा रही है, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे वो भी ग्लोबल इम्पैक्ट सभी इंडस्ट्रीज पे हो रहा है इस वक्त। तो आप उसके हिसाब से मत सोचिए, क्योंकि मार्केट चेंज होती रहती है। आपको सोचना है खुशी कि आपको क्या करना है बड़े होकर। अगर आपको आईआईटी आना है तो आपको जीई की तैयारी करनी है ना? तो आपको उसके लिए पढ़ाई करनी है, और आपको आईआईटी क्रैक करना है। आपको आईएम जाना है तो आपको आईएम के टारगेट करना है। लेकिन आपको, मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं खुद एक मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से हूँ, और मेरे को ये लगता है कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो ब्रेक इन करना, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ब्रेक इन करना ज़रूरी है। चाहे आप कोई सी भी फील्ड में करिए, चाहे आप ऑल इंडिया मेडिकल एम्स में जाइए, चाहे आप कहीं भी जाइए, कोई सी भी फील्ड हो सकती है। आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, लेकिन आपको उस फील्ड में बहुत अच्छा करना है। आप कोई सी भी फील्ड में जाओ। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस स्टेज पे, एटलीस्ट 12th के स्टेज पे, अभी आपको इतना ज़्यादा जॉब इंडस्ट्री का टेंशन लेना है। आपको पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए पूरी तरह। तो मैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मॉडरेटर आकांक्षा, वो भी पीएचडी कर रही हैं, मेरा भी फाइनल ईयर है। तो हमने पीएचडी क्यों करी? हमें इतना पढ़ना जरूरी नहीं था, लेकिन हमने क्यों पढ़ाई की? क्योंकि पढ़ाई करने से ही आप जॉब के लिए नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए, है ना? आपको और ज्यादा नॉलेज क्रिएट करनी है। तो आपका गोल, आप नॉलेज क्रिएशन रखिए। जॉब आपको मिल जाएगी, आपने 3 इडियट्स देखी होगी ना? आपके पास खुद ही सक्सेस पीछे आएगा। आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना, आपको अपनी मेहनत करनी है और अपनी कला का ध्यान रखना है। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि अभी एट दिस स्टेज आप ये देखिए आपको क्या बनना है, मेडिकल जाना है, कौन सी फील्ड चूज करनी है, और उसमें तैयारी करिए अच्छे एग्जाम की। या ऑल द Okay. बेस्ट। So, Devi Rashri, please unmute yourself and Yes, thank you everyone. First of all, मैं सबको thank you बोलना चाहूँगी because this was a very amazing and insightful session. So, मैम, मेरा question ये था कि actually I've appeared for NET twice, but unfortunately मैं clear नहीं कर पाई, and अभी जो GATE के results आए हैं उसके बाद I have qualified GATE, but I'm hearing this a lot कि only with the GATE we can't get into IITs. हमें GATE के along with NET चाहिए ही, because IITs look for higher ranks वाले बच्चों को पहले ले लेते हैं, and then if you are somebody falling into the rank of 800 to 1000, you might not have the chance to get into. So I have this big confusion in my head. If you can clarify it, बहुत help हो जाएगी. दिस इज रिगार्डिंग सोशल साइंस। Actually, I have literature background.
लिटरेचर, So ओके। yes, हाँ, so सो एक्चुअली नेट आपका मैंडेटरी है आईआईटी में टू गेट इन। तो यू नीड नेट टू गेट इन। गेट इज ऑलरेडी क्लियर्ड, लेकिन आपको नेट भी क्लियर होना चाहिए आपका। आकांक्षा, इफ यू कैन ऑल्सो कंफर्म दिस, मतलब मेरे साल पे तो मैंडेटरी था। आकांक्षा की साइकिल पे आई वुड जस्ट वो भी बोल दे तो अच्छा हम्म। रहेगा कि उसके उसकी साइकिल में हाँ, क्या था। चैनल अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है मेरे टाइम पे, मतलब मैंने कभी गेट अपीयर नहीं किया है और मेरे पास भी सिर्फ नेट ही था, जेआरएफ मैंने कभी नहीं ले पाया। सो नेट से भी आप डायरेक्ट फॉर्म अपना एडमिशन फॉर्म डाल सकते हो। नाउ द गाइडलाइंस हैज बीन चेंज्ड। सो गेट का जरूरत नहीं है, बट कोई बहुत लोग मैसेजेस में बोल रहे हैं, चैट में बोल रहे हैं। लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स आप कौन से डिसिप्लिन के लिए डाल रहे हैं। अगर आप टेक्निकल डिसिप्लिन के लिए डाल रहे हो, बीटेक के लिए डाल रहे हो, या अलग अलग दूसरे डिग्रीज के लिए डाल रहे हो, उसके लिए गेट मैंडेटरी है, क्योंकि उसमें आपको जेई रैंक के हिसाब से कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज में नेट, जेआरएफ एंड पीएचडी ओनली के साथ भी एडमिशन हो सकता है। दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फाइल योर कैंडिडेचर, राइट। अगर आपके पास गेट है तो वो भी अच्छा है, मतलब, लेकिन वो ओनली रिक्वायरमेंट नहीं है। हम्म। okay, so is it's like कि gate है, it's good, but ultimately I should have the net to यस। confirm a seat over there, and my subject will fall under humanities only. तो आप आप गेट नेट के थ्रू भी जा सकते हो। गेट के थ्रू भी जा सकते हो। जब आप फॉर्म Okay. भरोगे तो आपको बहुत Yes. सारे ऑप्शंस आएंगे। सो Okay. जरूरी नहीं है आपको मल्टीपल आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। आप गेट के थ्रू भी जा सकते हो। मेनी ऑफ माय Okay. फ्रेंड्स हैव गॉन थ्रू गेट स्कोर ओनली। ओके। Okay. 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 Thank you so much. ओके, लितेश, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Hello, hello. लितेश। Does I'm audible? Hello. यस यस यस। लितेश, यस प्लीज गो ऑन। Good evening. क्वेश्चन Good सर। evening, ma'am. My मेरा क्वेश्चन ये है कि that I've heard about that IITs that कि uh, because of that your PhD candidate you are, so they're going to grill you very well. Okay. The thing is that, and I've heard about that there is some sort of invisible rivalry used to goes on between the professor, and they used to tell that you're my person, so you need not to talk with the person, means other student. There will be the exchange of ideas and this whole thing. And I've heard that about that thing that some sort of very strong toxicity is there about these things. This whole thing that I've heard about that related to engineering field, does it is overlapping with that humanities things as well or not? That I just want to get to confirm about this thing. And the second question is that after doing PhD, that I've heard that almost they will take 4, 5 or 6 years to release you from PhD. Okay. So after doing PhD, does what type of in from IIT does we are going to get a placement or reference from the professor for any type of packages or not? That I just want to get to know about these whole things. Okay, thank you Litesh for the question. ये ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, डिपार्टमेंट में हो रहा है या कॉलेज में हो रहा है। ये हर कॉलेज में होती है पॉलिटिक्स, इंटरनल ऑफिस में भी होती हैं, हर लोगों के बीच में पॉलिटिक्स होती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। और आईआईटी यूनिक नहीं है इसमें। आईआईटी उस स्ट्रक्चर का ही पार्ट है जिसमें हम रह रहे हैं। तो और ज़रूरी, और सारे प्रोफेसर, हर प्रोफेसर भी इन दी एंड एक इंसान है जो कि अलग तरीके से ऑपरेट करता है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोफेसर सेम है या फिर एक के टॉक्सिक होने से सारे टॉक्सिक हैं। तो ये सब तो चीज़ें एक्सपीरियंशियल होती हैं। ये सब आप एक्सपीरियंस करने के बाद ही इन पे आप कमेंट कर सकते हैं फाइनली। तो हो आप इसको पहले से ये मत सोचिए, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें हर जगह हैं। और दूसरी बात, जॉब प्रोस्पेक्ट की जो आप बात कर रहे हैं वो चीज़ देखो, आईआईटी जो है उस इस हमारा जो देश है उसमें कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं, जिसको हम प्रेस्टिजियस या एमिनेंट इंस्टीट्यूट कहते हैं, वो बहुत कम है, वो ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर
हर एक इंस्टीट्यूट की ना एक मार्केट वैल्यू भी होती है। तो आप आईआईटी का जो टैग लेके आप मार्केट में जाएंगे, दो चीजें देखी जाएंगी। एक है कि आपके पास वो ब्रांड है, आप उस इंस्टीट्यूट से निकले हैं। दूसरी बात ये भी है कि उस इंस्टीट्यूट ने आपको लिया है। और तीसरी बात कि आप उस इंस्टीट्यूट से क्या निकल के निकले हैं, ग्रेजुएट किए हैं। क्योंकि एडमिशन पीएचडी में काफी मतलब काफी लोग ले भी लेते हैं, लेकिन उसको ना एक तरीके से उसमें की जो ट्रेनिंग है उसके साथ आपको स्टिक भी करना पड़ता है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल आपको पब्लिश भी करना पड़ेगा उस 4-5 साल में। तो अभी यूजीसी ने ये रूल मैंडेटरी नहीं करा है, पहले ये मैंडेटरी था पीएचडी में कि 2 पब्लिकेशन। इस अभी जो नए रूल्स आए थे उसमें नहीं था ये मैंडेटरी। लेकिन इवन दो लोग कहते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये फिर भी मैंडेटरी है, क्योंकि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो नॉलेज प्रोडक्शन है। तो आपको किसी तरह से नॉलेज प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और ऐसी नॉलेज जो पीयर रिव्यूड होती है। पीयर रिव्यूड माने जो जर्नल्स करते हैं, जहाँ पे फेयर मतलब फेयर टाइप का रिव्यू होता है, जो लोग आपको नहीं जानते वो आपका काम पढ़ते हैं और वो एक एक्सपर्टीज से निकल के वो फिर पब्लिश होता है। तो ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है इसको ग्रेजुएट करके निकलना। और अगर आप निकल जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। वो सिर्फ एक जॉब, वो आप मल्टीपल इंडस्ट्री में फिट हो सकते हैं। तो अभी अगर मैं सोचूं कि मुझे प्रोफेसर नहीं बनना, लेकिन मेरे पास और भी सारी चीजें हैं जो मैं बन सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं काफी आर्टिकल्स लिख देती हूँ, है ना। तो एक तरीके से मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट तो फुली नहीं कहूंगी, बट एक फ्रीलांस राइटर भी हूँ मैं। तो आप ये देखो ना, ये सब स्किल बेस्ड है। तो आप उसको उस तरीके से भी देखो, जो वो चीज है। I know this whole thing well, but the thing is that I'm already be an IITian. IITian. I'm from IIT KGP. I've done my Masters of Law from International Law from IIT KGP. So there the condition was like that कि चीजें हैं सब चीजें हैं, all the things work with the context and the law, these all things, but the direct placement from CDC is not happening. Other things are happening to the professors or with the friends of friends or the seniors. So so I was selected for PhD as well there in IIT, but I abdicated it because because my primary motive was that only to what you say, to pursue for job or internship and getting money. So my motive was that to asking that thus what is the very viable way if I'm doing PhD, thus I will get the 100% placement on it, because it is 5 to 6 year of investment of time. If you not get a direct job, that time I will be of 30 or 31. So तो that आप was कौन my सो आप कौन सा सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं? आप कौन से डिसिप्लिन से हैं? I'm from law. आप लॉ से हैं? ओके। Hmm. तो Sorry, Sainal. Uh, yeah. I think this one person is taking too much time. We need to give opportunity to other people also. So please. यस लितेश, आई एम सॉरी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस होंगे, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आई विल शेयर। मैं शैनल की ईमेल आईडी मैं पिन कर दूंगी। कोई क्लैरिफिकेशन कुछ चाहिए होगा तो प्लीज फील फ्री टू मेल चैनल। ओके, नाउ Adhiraj had the question. No, Adhiraj, can you please unmute yourself? जी, थैंक यू। आपने आज बहुत ज़रूरी बातें बताई हमें। अ, मेरा जैसे एक सवाल था कि मैं काफ़ी टाइम से एक टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। पिछले साल मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई है, मैं तब से ही काम कर रहा हूँ इस पे। इसको मैं अपने प्रपोजल में भी डेवलप करना चाह रहा हूँ। और मैंने कुछ प्रोफेसर से, मैं इंग्लिश से हूँ तो मैंने कुछ प्रोफेसर से बात करने की कोशिश की, मैंने ईमेल्स भी लिखी उनको। एक से मैंने एक कॉन्फ्रेंस में भी बात की, तो उनके साथ एक मीटिंग भी फिक्स हो गई थी, लेकिन वो पोस्टपोन होती रही, तो अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं मेरी ईमेल्स का। तो क्या मेरे चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं अगर मैं इनसे पहले अपना टॉपिक अच्छे से डिस्कस ना कर पाऊँ तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो कैंडिडेचर है, जो आपका एग्जामिन होगा, वो डायरेक्ट आपके प्रपोजल से होगा। प्रोफेसर आपको पहले जान सकता है, लेकिन उसका जो रिव्यू होगा वो आपके जानने से नहीं होगा, वो प्रपोजल से होगा कि आपका प्रपोजल कितना फिट हो रहा है। और डिसिप्लिनरी को जो प्रोफेसर की
प्रोफाइल है, क्या वो रेडी है लेने के लिए आपको, या उसका रिसर्च एरिया मैच कर रहा है। तो ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं टाइम टू टाइम, तो ये चेंज होती रहती हैं। तो हम नहीं कह सकते कि इस चीज पे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप अपना प्रपोजल अच्छे से सबमिट करिए जो आप करेंगे पीएचडी का। वो जरूरी है, आपके ग्रेड्स जरूरी हैं, मास्टर्स के ग्रेड्स जरूरी हैं, इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। तो मैंने ये सब चीजें कवर की हैं, सो फोकस ऑन दैट, प्रपोजल एंड इंटरव्यू। हम्म। और कोई क्वेश्चन? Okay, can we move Surinder Kumar? जी Su- नमस्ते। तो सुरेंद्र अपना आवाज आ रही है क्वेश्चन मेरी? बताइए। बिल्कुल। हेलो। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इन प्रेजेंट एज अ गांधी फेलो काम कर रहा हूँ झारखंड में। काम मेरा एजुकेशन पे है और कम्युनिटी बेस्ड काम है। हम काम करते हैं मार्जिनलाइज्ड पीपल्स के ऊपर, SC ST OBC ट्राइबल्स लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए। और मैंने ऑलरेडी 2 मास्टर्स जो है कंप्लीट कर ली हैं। लास्ट में मैं सोशल वर्क पे ही पूरा टिका हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट एरिया था कि मैं एकेडमिक्स में जाऊँ, हायर एजुकेशन में ही और टीचिंग में ही। तो अभी मुझे गाइडलाइन चाहिए कि एक तो फेलोशिप मैं कर रहा हूँ, मतलब आता भी मतलब बिल्कुल पुअर फैमिली से ही हूँ। तो मैंने खुद से हर चीज ये की है, मतलब फर्स्ट जनरेशन हूँ पढ़ाई करने वाला फैमिली से। तो अभी मुझे ये गाइडलाइन चाहिए थी कि किस तरह से जो मैं काम कर रहा हूँ अभी एज अ गांधी फेलो फील्ड में, उस चीज को एक कैसे डॉक्यूमेंट करूं या रिसर्च बेस में, ताकि इन फ्यूचर मेरे लिए वो चीज काम आए PhD में एनरोल होने के लिए। हम्म। जी तो सुरिंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ गांधीयन फेलो, एंड आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप अपना जो आपका जो फील्ड का जो फाइंडिंग्स है, आपने अपनी फेलोशिप में जो भी आपने काम किया है ना, उसको आप एक रिसर्च में फिट करिए। मतलब अगर मान लो, अगर आप एजुकेशन देख रहे थे बच्चों की, तो आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड करिए। आप झारखंड का जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब मैं आपको सिर्फ एक लेंस बता रही हूँ। चाहे जी आकांक्षा का जी। भी काम एजुकेशन पे है ना, झारखंड में। हम्म। तो आप आकांक्षा से भी बात कर सकते हैं। आई थिंक उसको ज्यादा अच्छे से पता है ये एजुकेशन वाला, इन टर्म्स ऑफ झारखंड। तो मेरे को ये लगता है कि आपका जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वहीं से प्रॉब्लम निकल के आती है, एक रिसर्च हम्म। प्रॉब्लम। और एक बहुत छोटी सी भी चीज हो सकती है। आप ये भी सवाल कर सकते हो कि क्यों झारखंड के बच्चे कहाँ, उनकी अपर मोबिलिटी कहाँ तक है, या वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल है जिनके आंसर्स रिसर्च अभी भी बहुत लिमिटेड है हमारे पास। बहुत कम लोग हैं जो इतना सारा लिख रहे हैं। बहुत प्रिविलेज्ड लोग जो लिखते हैं वो अलग चीजें होती हैं, बट आप अगर उस फील्ड बिल्कुल। पे हैं, आप बहुत साल वहाँ काम किया है, तो वो एक बहुत अलग इनसाइडर एक एक्सपीरियंस है, एक नॉलेज वो है आपके पास। तो आप उसको यूज करिए। बाकी तो मुझे आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं आपको और गाइड नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप करिए, मतलब इन फ्यूचर अगर आप अपना काम बिल्ड करेंगे, तो हाँ, हम थोड़ा बहुत गाइडेंस दे सकते हैं आपको। हम आपका प्रपोजल रिव्यू कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ये बहुजन कॉलेज में बहुत सारे मेंटर्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद से लिखना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है। चलो चलो यार। जी जी। थैंक यू थैंक यू। हाँ, सुरेंद्र, आप जो स्कूल में काम कर रहे हो, मैं भी स्कूल पे काम कर रही हूँ। और जी जिस तरह आप गांधी फेलो हो, मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए काम करती थी। लेकिन जी। मैं स्कूल में जाती थी, बच्चों को देखती थी, लेकिन मेरा काम दिल्ली पे ही था, ठीक है। और तो ओके। आप जब स्कूल जाते हो, आप दूसरे बच्चों को देखते हो, दलित बच्चे देखते हो, दूसरे स्टेटस के बच्चे देखते हो, कैसे वो मिंगल कर रहे हैं, कैसे वो आपस में रह रहे हैं, कौन किसका दोस्त है, कैसे टीचर्स कैसे किस बच्चे को कैसे ट्रीट करती है। आप उन सब को देखने की कोशिश करो। जब आप ये सब कनेक्शंस बनाना शुरू करोगे ना, आपको रिसर्च गैप आपका मिल जाएगा, और उसी से आपका टॉपिक निकल के आएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। जब मैं स्कूल जाती थी,
बच्चों से बातें करती थी या मैं स्ट्रक्चर देती थी कि स्कूल में काम कैसा हो रहा है, कौन किसको ज्यादा हेल्प कर रहा है, किस बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि कौन क्लास में कम स्कोर करता है और कौन ज्यादा करता है और कौन कैसे करता है। आप उन चीजों को थोड़ा सा बारीकी से देखोगे तो आपको रिसर्च गैप समझ आएगा और आप उसी से अपना रिसर्च टॉपिक आप बना पाएंगे। आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए हो, क्योंकि मेरा काम भी झारखंड पे है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, आपके डाउट्स के बारे में डिटेल में। थैंक यू सुरेंद्र। थैंक यू वेरी मच। जी जी ठीक है जी। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं शायद अभी, बट अनिल कुमार प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो इनिशिएटिव है उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और क्या कहते हैं प्रेज थी। मुझे ये पूछना था कि जो हम जैसे हमारा नई एडमिशन हुआ उसके बीच में हम कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो पैसे का होता है ना कि कितना कितना हम जो खुद से बना के भेजते हैं प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल जो हमको आईसीसीएस और बाकी बाकी नीति आयोग वगैरह से लेना होता है, तो उनमें किन चीजों का ध्यान रखें। जैसे पब्लिक पॉलिसी, मतलब मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो पब्लिक पॉलिसी जो है वो बेसिकली है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देखिए हर प्रोजेक्ट का अपना एक तरीका होता है करने का अनिल। तो अगर एक प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसका डिमांड्स भी प्रपोजल का बड़ा होगा लिखने का। तो मैं ये कहती हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के प्रोजेक्ट्स निकलते हैं वेबसाइट पे, अब वो जाके चेक करिए क्योंकि वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते, 3-4 मंथ्स ऐसे महीने पे चलते हैं। और उनका पे भी सही है, मतलब वो ठीक ठाक पे करते हैं। लेकिन हाँ उनका जो सिलेक्शन होता है वो आपके खुद के पब्लिक पॉलिसी में आपने कितना रिसर्च किया है, मतलब आपका एक पेपर आया है या फिर आपका आपने पास्ट में क्या रिसर्च किया, आप में क्या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने की स्किल्स भी हैं, कि आपको एसपीएसएस यूज़ करना आता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो दूसरी चीज़ें हैं जो टूल्स हैं, टूल्स का आप हैंडी रखिए। तो मुझे लगता है हर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नीति आयोग है कोई भी, उनको सबको चाहिए ऐसा कैंडिडेट जिसके पास ये सॉफ्ट स्किल्स है, एसपीएसएस यूज करना या फिर जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं इन पे आप काम करिए और अपना जो प्रपोजल है, जो मैंने पॉइंटर्स बताए उसको ध्यान में रख के आप प्रपोजल रखिए, लिखिए अपना एक, मतलब अगर आपको मतलब लिखना है तो आप उसको ध्यान में रख के लिखिए। ओके मैम, थैंक यू सो या मच। वेलकम। साक्षी प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने क्वेश्चंस क्रिस्प रखिए। कम शब्दों में ज्यादा बातें बोल दीजिए, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखते हैं। साक्षी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि ये बहुजन स्कॉलर्स जो प्लेटफॉर्म है इससे हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड सेकंड थिंग कि मैं भी सोशियोलॉजी परस्यू कर रही हूँ, मास्टर्स सेकंड सेमेस्टर फ्रॉम जेएनयू। तो मैं आप लोगों के टच में कैसे आ सकती हूँ। ऐसे मैं आकांक्षा मैम सोशियोलॉजी में ही पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, तो आई वांटेड टू बी इन टच विद यू, सो हाउ कैन आई कनेक्ट विद यू। मैंने अपना ईमेल शेयर कर दिया साक्षी, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं। बाकी बहुजन स्कॉलर्स में आकांक्षा है, आप आकांक्षा से कनेक्टेड रहिए, वो उसका ईमेल भी आकांक्षा डाल देगी। सो बेस्ट ऑफ लक। ओके मैम, थैंक यू मैं सो मच। बहुजन स्कॉलर्स का ईमेल भी टैग कर रही हूँ और वेबसाइट भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ, अलॉन्ग विद माय पर्सनल ईमेल आईडी। आप प्लीज उसको आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मैं आप उसको डाल के और आगे के कनेक्शंस के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है साक्षी? ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, शाओमी 22011 नाम नहीं है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो। हाँ, मेरा डाउट ये प्रोफेसर्स को मेल करने को लेके था कि किस फॉर्मेट में मुझे मेल करना चाहिए, किसी मुझे मेरा रिसर्च टॉपिक मेंशन करना चाहिए कि पूरा प्रपोजल भेजना चाहिए, और ये कि फॉर्म्स निकलने के बाद क्या मैं मेल कर सकती हूँ कि पहले ही करना चाहिए, ये डाउट था।
पहली बात तो फॉर्म एडमिशन साइकिल होने से पहले ही करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत बिजी हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बिजी हो जाते हैं एडमिशन साइकिल से। सेकंड बात, आपको जो ईमेल करना है उसमें आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपना नाम, आप अभी क्या कर रहे हो, आपने एजुकेशन कहाँ से की है ना, आपका डिसिप्लिनरी इंटरेस्ट क्या है। उसमें आप प्रपोजल मत अटैच करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोफेसर के लिए ओवरवेलमिंग होता है कि वो ईमेल खोलते ही इतना बड़ा प्रपोजल। आप हमेशा वो क्वेश्चन पहले करिए प्रोफेसर से कि आई यू कम, आई वुड लाइक टू शेयर माय रिसर्च प्रपोजल विद यू। और अगर प्रोफेसर को इंटरेस्ट है तो वो आगे से बोलते हैं कि हाँ प्लीज भेज दो। ठीक है। इन मोस्ट केसेस आईआईटी सिस्टम में प्रोफेसर आपसे पहले प्रपोजल नहीं आपको भेजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एडमिशन साइकिल में प्रपोजल है। तो आप सिर्फ अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हो कि सर दिस इज, और मैम दिस इज व्हाट आई एम, ये मैं कर रही हूँ या इसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्या आपके अंडर वेकेंसी होगी इस एकेडमिक ईयर में। मुझे बहुत आपका काम अच्छा लगता है। आपको थोड़ा एंगेजमेंट भी पता होना चाहिए ना प्रोफेसर के बारे में कि उसका क्या काम है। तो प्रोफेसर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्टूडेंट को मेरे काम के बारे में नहीं पता, ये मेरे अंडर आके क्या करेगा ये स्टूडेंट। तो आप थोड़ा उनके काम के बारे में पढ़िए, उनके पेपर के बारे में पढ़िए। Okay, Vivek Kumar, please unmute yourself. हेलो मैम, आई एम विवेक कुमार। एक्चुअली मैं थोड़ा मार्जिनल सेक्शन से हूँ। मैं इग्नू से सोशोलॉजी किया हूँ, और मैंने नेट और गेट दोनों मतलब सोशोलॉजी में है। और मैं मतलब कि कम्युनिकेशन मेरा थोड़ा वीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो ये क्या आप मुझे हार्डल होंगे मतलब इंटरव्यू में? और दूसरी चीज़ है कि मैं मतलब स्पेशली आईटी दिल्ली में कैसे मतलब कोई फैकल्टी वगैरह जिनको मैं अप्रोच कर पाऊँ, क्योंकि मैं सोशोलॉजी में ही आगे पीएचडी करना चाहता हूँ। आपका रिसर्च टॉपिक इंटरेस्ट, रिसर्च टॉपिक क्या है जिसमें आपने अप्लाई किया था? मैम Sorry. अभी इंटरेस्ट मैंने इंटरसेक्शनलिटी फेमिनिज्म पे डाले थे, बट उस पे मुझे लग रहा है कि और उस पे स्टडीज करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, आप मुझे ईमेल करिए, मैं आपसे टच में रहूंगी और आई कैन गाइड यू, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि आप इंग्लिश पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि काफी आजकल हर जगह हर डिपार्टमेंट को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो इंग्लिश अच्छे से बोल पाए। ये बात हम बोलते हुए हमें अजीब लगती है, लेकिन ये सच रियलिटी है। तो आप प्लीज बुक्स पढ़िए, और आप यूट्यूब पे जाइए, आप देखिए। आप एक मैं आपको सबको एक ट्रिक बताती हूँ। जब तक आप इमिटेशन नहीं स्टार्ट करोगे तब तक आप नहीं ब्रेक कर पाओगे। वो जो एक एक स्टार्टिंग का जो नर्वसनेस होता है ना, वो आप बहुत ज्यादा, वो जो आप घबराते घबराते हो, वो आप ब्रेक नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। इमिटेशन से सीखो। सारे एकेडमिक्स एक दूसरे को इमिटेट करते हैं, आपको लगता होगा कि वो कहीं जीनियस, जीनियस कोई भी नहीं है, सब एक दूसरे को इमिटेट कर रहे हैं। आप किसी का राइटिंग स्टाइल, आपको किसी का स्पीकिंग स्टाइल पसंद है, इमिटेट करो, कॉपी मत करो, उसमें अपना क्रिएशन लाओ। लेकिन कोशिश तो करो, स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ो, वर्ड सीखो हर रोज, कम से कम 50 से 100 वर्ड सीखो इंग्लिश के, उनको प्रैक्टिस करो। सेंटेंसेस, ग्रामर, ये सब मैटर करता है। तो स्टार्ट स्टार्ट कर दो, मतलब प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। ओके मैम, थैंक यू मैम। Lakshindra Gogoi. Hello, ma'am. Uh, I'm Lakshindra Gogoi. I'm working as an assistant professor in a government model college in Assam, and also completed my NET and MPhil and all. But I was unable to join my PhD program till now. So the difficulty is that I mean, is there any, I mean, executive PhD, part-time PhD is providing in IITs? So far as IIM is concerned, I think for the working professional, they are providing a part-time PhD. So I would just want to know about this, whether any provision is there in IITs for the working professional. And one suggestions
to this program that if you could conduct on like doing PhD in IIM, how social science and humanities students will going to help. So this will be, another, helpful session for the marginalized section student. So these two questions is there. Okay. Okay, Lakindra, right? Thank Yes. you. And honestly, I am not in IIM, so I can't tell you, but IIM के बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। मैं सिर्फ IIT के बारे में बता सकती हूँ आपको। IIM के लिए दूसरा सेशन होगा, लेकिन पार्ट टाइम PhD है IIT में, तो आप पार्ट टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें। जैसे नॉर्मल PhD में 4 या 5 इयर्स लगते हैं, पार्ट टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन उसके साथ आपको जितना स्टाइपेंड मिलता है उसका आई थिंक आधा मिलता है। जितना मिलता है उससे काफ़ी कम मिलता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको आप एक बार चेक कर लेना। बाकी मैं IIM के बारे में नहीं बता सकती आपको। या Yeah. बेस्ट ऑफ Sorry, Akanksha, now we have to conclude. हमको ये इसको conclude करना पड़ेगा. Sorry, time limit. Please continue. सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन है हमारे पास, बट मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी चैनल को और सारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इस सेशन को सक्सेसफुल बनाया। और ये हमारा पहला हिंदी वेबिनार सीरीज था, उसका फर्स्ट एपिसोड कह सकते हैं। बट नाउ मुझे भी आइडिया लगा, इवन भरत भाई को भी आइडिया लगा है कि हम सॉरी Please share email IDs on the chart. I can't hear you properly. Share your email guys. IDs or the Continue. कि आगे के वेबिनार हमें किस तरह से और किस टॉपिक के साथ कंटिन्यू करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, पर्सनली थैंक यू सो मच चैनल कि इतना टाइम दिया तुमने, और यू हेल्प्ड एवरीवन आई थिंक, एंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर करके सबके एक्सपीरियंस एक जैसे ही होते हैं। आई थिंक वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम द सेम कम्युनिटी एंड वी हैव द सेम गोल्स टू अचीव। सो आई थिंक वी आर देयर फॉर ईच अदर, एंड किसी को भी कैसा भी डाउट हो या रिगार्डिंग योर PhD, MA, वी आर ऑल ओपन। यू कैन मेल अस, यू कैन bahujans14@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं, या हमने फर्स्ट अपना ईमेल आईडीज भी पिन किया है, प्लीज आप उस पे मेल कर सकते हैं। एंड आगे के भी वेबिनार में आप प्लीज आइए, एंड होपफुली दीज हिंदी वेबिनार्स विल हेल्प यू टू द मोस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू भारत।